Hello, students. How are you? First of all, on behalf of Don Bosco School, I welcome you all in this session that is related to English literature. In your English literature, it is combination of many units, but today we are just going to find out Unit 1, and it is related to caring for others. Today we will find out the section 1, very first section, that is related to every child is free to be a child. Every child is free to be a child. It is written by the great activist, the great author, Mr. Kailash Satyarthi. And in this particular chapter, he tells us about child labor, which is a very bad or worse situation in our country or in whole world. So we will find out that what are the things, how and in which situations Mr. Satyarthi made this part. We will see in the explanation one by one along with the meanings of the words. Let us start the explanation of section 1. Every child is free to be a child. हर बच्चा आज़ाद है एक बच्चा बनने के लिए. उसका बचपन उससे छीनना नहीं चाहिए. Caring for those in trouble, children in particular, often requires sacrifice and service. Here is the amazing story of a truly caring person who believes that he can make the world a better place for children. ऐसे बच्चे जो वाकई कठिनाइयों से घिरे हुए हैं, मुश्किलों में हैं, खास तौर पर बच्चे, ऐसे बच्चे जो लेबर क्लास का काम कर रहे हैं, इनको वाकई त्याग की ज़रूरत है और उनको सेवा की ज़रूरत है. यहाँ पर एक बहुत ही अमेजिंग स्टोरी के माध्यम से ये बताने की कोशिश की गई है कि ऐसे एक बहुत ही केयरिंग पर्सन है जिनका ये विश्वास है कि वो दुनिया में बच्चों की जो स्थिति है उसको और अच्छा और बेहतर बना सकते हैं. Over 50 years ago, on the first day of my school, I met a cobbler boy, my age, sitting outside the gate of my school. I asked my teacher, why is the boy working outside? Why is he not with us in school? My teachers had no answer. तकरीबन 50 साल पहले की बात है. मेरे स्कूल में मेरा पहला दिन था. वहां पर मैंने अपने स्कूल के गेट के बाहर एक अपने ही हम उम्र बच्चे को जो कॉबलर का काम करता था उसको वहां बाहर बैठे देखा. मैंने अपने टीचर से पूछा कि ये वहां बाहर क्यों काम कर रहा है, ये हमारे स्कूल में क्यों नहीं है. हमारे टीचर के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था. One day I gathered the courage to ask the boy's father the same question. He said, "Sir, I have never thought about it. We were born to work." His answer made me angry. It still makes me angry. As a child, I had a vision of tomorrow, a vision of that cobbler boy sitting with me in my classroom. एक दिन मैंने अपना पूरा साहस इकट्ठा किया, मेरे अंदर जितनी शक्ति थी वो इकट्ठा की मैंने, और मैंने उस लड़के के पिता से वही प्रश्न पूछा. और उसने उस समय मुझे जो जवाब दिया वो ये था कि सर, हमने इसके बारे में इसके पहले कभी सोचा ही नहीं. हमारा तो जन्म ही काम करने के लिए हुआ है. और उनका वो जवाब जो था उससे मुझे बहुत गुस्सा आया और ये आज भी मुझे गुस्सा दिलाता है. और जब हम बात करें एक बच्चे के तौर पर,
मेरा एक कल के लिए, भविष्य के लिए एक मेरा अपना विचार था, मेरा अपना विजन था। और ये विजन था कि एक कॉबलर बॉय जो है वो मेरे बगल में बैठकर मेरे साथ मेरे क्लासरूम में पढ़े। नाउ दैट टुमारो has become today. Today, it is time for every children to have a right to life, right to freedom, right to health, right to education, right to safety, right to dignity, right to equality, and a right to peace, said Kailash Satyarthi in his Nobel Peace Prize acceptance speech in 2014. मिस्टर कैलाश सत्यार्थी ने अपनी एक्सेप्टेंस स्पीच, जब उनको नोबेल प्राइज दिया जा रहा था, नोबेल पीस प्राइज दिया जा रहा था 2014 में, तब उन्होंने अपने एक्सेप्टेंस स्पीच में ये बात कही थी। और आज जो उनका कल था वो आज हमको बदलना है। आज वो समय है जब हम हर बच्चे को उसके जीवन का अधिकार देंगे, उसकी स्वतंत्रता का अधिकार दें, उसके स्वास्थ्य का अधिकार उसको दें, उसकी शिक्षा का अधिकार उसको दें, उसकी सुरक्षा का अधिकार उसको दें, उसकी सम्मान का अधिकार उसको दें और समानता का अधिकार उसको दें। साथ ही साथ उसको शांति का अधिकार भी मिलना चाहिए। ये विचार मिस्टर कैलाश सत्यार्थी के थे जब वो नोबेल पीस प्राइज रिसीव कर रहे थे 2014 में। Let us know something about Mr. Kailash Satyarthi. Kailash Satyarthi, born in 1954 in the Vidisha district of Madhya Pradesh, is the best known child rights activist in the country. Reports say that he has freed more than 80,000 children from bonded labor. कैलाश सत्यार्थी जी का जन्म 1954 में विदिशा डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, जो मध्य प्रदेश में है। और वो इस बात के लिए विख्यात हैं कि वो एक बच्चों के लिए एक्टिविस्ट हैं। ऐसा कहते हैं कि जो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, जो अपने हर क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्र में काम करते हैं, इन्होंने बच्चों को, उनकी स्थिति को ऊपर लाने के लिए उनकी मदद की, उस क्षेत्र में उन्होंने काम किया। इस देश में वो एक चाइल्ड राइट्स एक्टिविटीज के तौर पर ही जाने जाते हैं। और रिपोर्ट्स कहती हैं कि उन्होंने तकरीबन ऐसे 80,000 बच्चों को जो बंधुआ मजदूरी किया करते थे, बॉन्डेड लेबर किया करते थे, उनको उस बंधुआ मजदूरी से आजाद कराया। Satyarthi studied electrical engineering and obtained a postgraduate diploma in high voltage engineering. उन्होंने एक बहुत बड़ा सम्मान, जिसको इंजीनियरिंग कहते हैं, उन्होंने इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हासिल किया। और उन्होंने जिस डिपार्टमेंट से अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की वो था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। He taught in a college in Bhopal for a few years before dedicating himself to a life of advocacy against child labor and child servitude. उन्होंने भोपाल के एक कॉलेज में कुछ समय पहले, जब वो अपने आप को इस समाज सेवा की तरफ डालना चाहते थे, उस समय उन्होंने वहाँ पर एक कॉलेज में, भोपाल के कॉलेज में पढ़ाया था चाइल्ड लेबर के बारे में और चाइल्ड सर्विट्यूड के बारे में। चाइल्ड लेबर मीन्स बंधुआ मजदूरी, बच्चों की मजदूरी, और चाइल्ड सर्विट्यूड का मतलब होता है कि उनको गुलाम बनाना। तो बच्चों को गुलाम बनाना और उनसे मजदूरी कराना, ये सारी चीजें उनको पसंद नहीं थी। और इन सब चीजों को लेकर उन्होंने अपना एक प्लान तैयार करके भोपाल के एक कॉलेज में इन चीजों के बारे में पढ़ाया। This tireless campaigner for children's right established the Bachpan Bachao Andolan in 1980 with a vision to end the problems of child labor. ये कभी न थकने वाले एक ऐसे कैंपेनर थे
जिन्होंने बच्चों के जो अधिकार हैं उनको स्थापित करने के लिए एक आंदोलन चलाया, एक रिवॉल्यूशन किया 1980 में, 1980s में, जिसका नाम था BBA एंड इट वाज बचपन बचाओ आंदोलन। और इसका एक विजन था कि जो बच्चों की सबसे बड़ी समस्या है चाइल्ड लेबर की, उसको दूर किया जाए। द ऑर्गेनाइजेशन soon became a mass movement that identified, liberated, rehabilitated and educated child laborers across the country। इन्होंने जो ये आंदोलन चलाया था वो एक समय के बाद जल्दी ही एक जन आंदोलन में, एक सामूहिक आंदोलन में बदल गया, जिसमें ऐसे बच्चों को फाइंड आउट करना था, ऐसे बच्चों को खोजना था जो चाइल्ड लेबर करते थे हमारे देश में। उनको उनसे आजाद कराया गया और उनको फिर से पुनः उनको बसाने की कोशिश की गई, उनको पढ़ाई लिखाई कराने की कोशिश की गई। It has liberated 82,000 child laborers to date and continues to work to rehabilitate and educate them। और इसमें ये बताया गया कि तकरीबन 82,000 चाइल्ड लेबरर्स जो थे उनको उस डेट तक आज़ाद कराया गया और उनको फिर से पढ़ाया गया, उनको फिर से बसाया गया और उनकी एजुकेशन पर काम किया गया। Back when the organization was formed, the issues of child labor was not widely discussed in public. Those were challenging times for the BBA. When Satyarthi led rescue missions for children and other working in bonded labor in manufacturing industries, he was attacked several times, but he survived. जब इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था, फॉर्म किया गया था, उस समय खास तौर पर इस मुद्दे को पूरी तरह से आम जनता के बीच डिस्कस नहीं किया गया था। और उस समय बचपन बचाओ आंदोलन जो था वो काफ़ी चैलेंजिंग था, काफ़ी संघर्षपूर्ण था। और उस समय जब डॉक्टर सत्यार्थी ने इस मिशन को, इसको बचाने का प्रयास किया, बच्चों को वहाँ से दूर हटाने की कोशिश की, बॉन्डेड लेबर को हटाने की कोशिश की, जो इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में काम किया करते थे, तो ऐसे समय में उनके ऊपर कई बार अटैक भी किया गया, उनको मारने की कोशिश की गई, लेकिन वो तब भी बचे रहे, वो जीवित रहे। Those incidents of violence only strengthened his resolve to continue with his work। और ऐसे अटैक्स जो उनके ऊपर हुए, जो वायलेंस हुए उनके ऊपर, जो आक्रमण उनके ऊपर हुए, उन्होंने उनको और मजबूत किया कि वो इस तरह के काम को और सक्रियता से करें। Satyarthi also helped in coordinating the historic global march against child labor in 1998। तो सत्यार्थी जी ने एक और मदद की, एक ऐतिहासिक परंपरा का जन्म दिया जब उन्होंने एक ग्लोबल मार्च की शुरुआत की, वो भी चाइल्ड लेबर के खिलाफ 1998 में। The march took place across 103 countries and culminated in an international ban on child labor। The children who marched with Satyarthi in 1998 were his inspiration. He has often mentioned, because they were so selfless, energetic and committed to ending all forms of चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन। सत्यार्थी जी के इन प्रयासों को देखकर बचपन बचाओ आंदोलन का जो एफर्ट था, उसने जो बच्चे इन्वॉल्व थे फार्मिंग में, और बहुत सारे इश्यूज थे चाइल्ड लेबर के भारत में, तो इन सबको देखते हुए उन्होंने
एक जो इंडियन गवर्नमेंट से अपील की, उसके एवज में 1986 में चाइल्ड लेबर एक्ट बना, और जिसने ये बात कही कि ऐसे बच्चे जो 14 वर्ष से कम उम्र के हैं, उन बच्चों को कामगार के रूप में रखना कानूनन अपराध माना जाएगा, और उन्होंने चाइल्ड लेबर पर बैन करा दिया। सत्यार्थी जी ने एक ग्लोबल मार्च किया था अगेंस्ट चाइल्ड लेबर इन 1998, और उस ग्रुप में उनके साथ तकरीबन 103 कंट्रीज इन्वॉल्व हुई थी, और जिसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि हम चाइल्ड लेबर को बैन कर दें, और उन्होंने उसको किया। उन सारी कंट्रीज ने मिस्टर सत्यार्थी को सपोर्ट किया उनके इस आइडिया के लिए, इस थॉट के लिए। जो बच्चे इस मार्च में सत्यार्थी जी के साथ जुड़े थे इन द ईयर 1998, वो ही उनकी इंस्पिरेशंस थे, और वो अक्सर इन चीज़ों को अपने जब भी वो कुछ ऐसे स्पीचेस डिलीवर करते हैं, तो वो इन चीज़ों को मेंशन करने से बिल्कुल नहीं चूकते, क्योंकि वो जो बच्चे थे वो सेल्फलेस थे, और उन्हीं की वजह से वो एक एनर्जेटिक सिचुएशन में आते थे, और कहते हैं कि ये सारे बच्चों को उन्होंने उनके शोषण से, उनके एक्सप्लॉयटेशन से आज़ादी दिलाई, और इसी काम की वजह से चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन आज बिल्कुल नहीं के बराबर है। नॉट सरप्राइजिंगली, कैलाश सत्यार्थी हैज ओनली one goal in life, which he passionately highlighted in his Nobel Prize acceptance speech. इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि कैलाश सत्यार्थी जी का अपने जीवन में सिर्फ एक ही गोल था, और जिसको उन्होंने बहुत ही स्ट्रांग फीलिंग्स के साथ पैशनेटली अपने नोबेल प्राइज एक्सेप्टेंस स्पीच में हाईलाइट किया था। उन्होंने ये कहा था, My only aim in life is that every child is free to be a child. मेरा अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ एक एम है कि हर बच्चा आजाद हो बच्चा बनने के लिए, उसका बचपन छीना ना जाए। फ्री टू ग्रो एंड डेवलप, बढ़ने के लिए वो स्वतंत्र हो और अपने आप को डेवलप करने के लिए स्वतंत्र हो, अपने आप को विकसित करे, अपने आपको अपनी क्षमताओं को बढ़ाए। फ्री टू ईट, स्लीप एंड सी डे लाइट, खाने के लिए, सोने के लिए वो पूरी तरह से आजाद हो, और अपने जीवन में वो जो बाहर की रोशनी है, बाहर की दुनिया है, उसको देख सके। फ्री टू लाफ एंड क्राई, जब उसका मन करे वो हंस सके, जब उसका मन करे वो दुखी हो तब वो रो सके। फ्री टू प्ले एंड लर्न, वो इस बात के लिए स्वतंत्र हो कि वो कभी भी खेल सकता है और चीजों को सीख सकता है। इन सब चीजों के लिए उसको आजादी मिलनी चाहिए। एंड द वेरी मेन थिंग, फ्री टू गो टू स्कूल, और कम से कम विद्यालय जाने की उसको आजादी हो, स्कूल्स में जाने की आजादी हो, उसको पढ़ने की आजादी हो, उसके पास राइट टू एजुकेशन हो, एंड अबव ऑफ ऑल फ्री टू ड्रीम। और अगर बात करें इन सब से परे, इन सब के ऊपर, तो सबसे बड़ी चीज होती है एक छोटे से बच्चे के लिए फ्री टू ड्रीम, उसको सपने देखने के लिए वो आजाद हो, क्योंकि कहा गया है सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो सपने देखते हैं। Here we end the explanation part, and we will provide you some assessment, some assignment, so you will have to go through with it. Now, after the explanation of this chapter, dear students, we are just providing you some assessment regarding this chapter.
in which your first part is let's read and find out the fact, in which you have to go through with true and false sections, right? It is just related to your chapter, whatever we had gone through with. And first one is done for you. The question was, Kailash Satyarthi continued to teach in college even after becoming a child rights activist. It is false, because for it was just mentioned in the chapter that he made this thing few years only, right? So he haven't continued it. It was just for time being. That's why the answer is false. And rest of the questions you will have to go through with, and you have to send it to me, your assignment, so that we can check it out and give you the assessment record. Okay, so stay safe, stay healthy, keep yourself fit and fine, so that whenever we will meet, we will make both of us happy. Have a nice day ahead. Keep on going, keep on studying, and please wait for our next session related to your subjects. And if you have not subscribed our YouTube channel, please subscribe it and press the bell icon. Have a nice day. Thank you.